नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो है वो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। यानी कि इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में जो पिछली वीडियो बनाई थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसलिए उसका पार्ट टू में हम जानेंगे कि इंटरनेशनल क्या राय बनती है इंडिया चाइना डिस्प्यूट को लेकर के। क्या सोचता है अमेरिका इस विषय पर और क्या सोचता है रशिया इस विषय पर लेकर। इस इन दोनों ही चीजों को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और इस वीडियो से आप एक अंदाजा लगाइए कि व्हाइट हाउस या डोनाल्ड ट्रंप चाइना के प्रति अपनी क्या राय रखते हैं। I'm here today to talk about our relationship with China and several new measures to protect American security and prosperity. China's pattern of misconduct is well known. For decades, they've ripped off the United States like no one has ever done before. Hundreds of billions of dollars a year were lost dealing with China, especially over the years during the prior administration. China raided our factories, offshored our jobs, gutted our industries, stole our intellectual property, and violated their commitments under the World Trade Organization. To make matters worse, they are considered a developing nation, getting all sorts of benefits that others, including the United States, are not entitled to. But I have never solely blamed China for this. They were able to get away with the theft like no one was able to get away with before because of past politicians and, frankly, past presidents. But unlike those who came before, my administration negotiated and fought for what was right. It's called fair and reciprocal treatment. China has also unlawfully claimed territory in the Pacific Ocean, threatening freedom of navigation and international trade. And they broke their word to the world on ensuring the autonomy of Hong Kong. The United States wants an open and constructive relationship with China, but achieving that relationship requires us to vigorously defend our national interests. The Chinese government has continually violated its promises to us and so many other nations. These plain facts cannot be overlooked or swept aside. The world is now suffering as a result of the malfeasance of the Chinese government. China's cover-up of the Wuhan virus allowed the disease to spread all over the world, instigating a global pandemic that has cost more than 100,000 American lives and over 1 million lives worldwide. Chinese officials ignored their reporting obligations to the World Health Organization and pressured the World Health Organization to mislead the world when the virus was first discovered by Chinese authorities. Countless lives have been taken and profound economic hardship has been inflicted all around the globe. आपने अगर ये वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अमेरिका चीन को लेकर के बौखलाया हुआ है। चीन के ऊपर कड़ी से कड़ी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और ये कोरोना काल के पहले ही आना शुरू हो चुकी थी। जो चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था, इस मसले को लेकर के प्रतिक्रियाएं सख्त हो रही थी व्हाइट हाउस से, और वो सख्त व्हाइट हाउस की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब और भी तेजी से देते हैं और वो लगातार ये प्रतिक्रिया देते चले जा रहे थे। और फिर उनका एक ट्वीट आ गया 27 मई को, जिसमें उनको एक मसाला मिल गया साहब। मसाला क्या? इंडिया चाइना के बीच पनपने वाला एक मसाला। खबर अक्षाई चीन से शुरू हुई, पहुंचती है कहां? यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स से बयानबाजियों का सिलसिला चालू। मई 27 को जो ट्वीट आता है, जिसे भारतीय मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का भारत के हित में मानता है। अगर हम भी माने तो ये भारत के हित में ही है और हम कहीं ना कहीं अमेरिका से डिप्लोमेटिक संबंधों में हमारी प्रगाढ़ता बढ़ती जा रही है और एक दोस्ताना संबंध आगे की ओर है। इसमें कहीं कोई आपत्ति मन में भी नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका भारत के साथ क्या
नहीं खड़ा होगा, वो बिल्कुल खड़ा होगा, वो भारत के ही साथ है। और उसकी इस तरीके की प्रतिक्रियाएं मई 27 को आती हैं। और पहला ट्वीट जो मई 27 को आया उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैं यहां पढ़ भी दे रहा हूं। वी हैव इन्फॉर्म बोथ इंडिया एंड चाइना दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज रेडी, willing and able to mediate or arbitrate their now ragging border dispute। ये साफ कहना है डोनाल्ड ट्रंप जी का कि वो भारत और चीन के मामले में इंटरमीडिएट करना चाह रहे हैं, मध्यस्थता करना चाह रहे हैं। लेकिन मध्यस्थता करता कौन है? मध्यस्थता वो व्यक्ति करता है जिसके भारत और चाइना दोनों के साथ संबंध बेहतर होते। उसकी मध्यस्थता करने की बात तो समझ में आती है। यानी भारत और चाइना दोनों से बेहतर संबंध की दशा में कौन था रशिया। मगर पुतिन साहब का कोई बयान नहीं आता है। रशिया का रुख भी क्या है मैं बताऊंगा आपको ट्वीट के जरिए। देखते रहिए, वीडियो को समझते रहिए और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात ऐसे ही होती रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ये ट्वीट किया मई 27 को, इसी ट्वीट में एक रीट्वीट आता है साहब। वो रीट्वीट किसका है? समीरा खान जी का। वो एक इंडिया टुडे की न्यूज को लगाती हैं और वो बताती हैं कि नरेंद्र मोदी साहब किस तरीके से शॉक में थे ये जान करके कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये पता ही नहीं था कि भारत और चाइना बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। यानी भारत और चीन के बीच में बाउंड्री लगती है, इस बात की उनको जानकारी ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति से हम मध्यस्थता की उम्मीद कर रहे हैं। ये कितनी जायज है इसे आप अपने हिसाब से सोचते चलिएगा। मैं तो वही बता रहा हूं जो जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो लगभग 3-3.5 हजार किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है हमारा इंडिया और चाइना के बीच में। और उस बॉर्डर की पूर्णता जानकारी डोनाल्ड ट्रंप साहब को नहीं थी और वो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। अब अगली बात को समझते चलिए। अगली बात क्या? अगली बात चाइना के एक स्पोक्स पर्सन है, वो एम्बेसडर के तौर पर पाकिस्तान में भी नियुक्त थे और उनकी थोड़ी विचारधारा चाइनीज की, वैसे तो विचारधारा भारत के खिलाफ ही रहती है मोर और लेस। तो लीजियांग चाओ, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं लीजियांग चाओ के, जो स्पोक्स पर्सन है चाइना के, इनके ये ट्वीट करते हैं और उसमें रशियन फाइनेंस मिनिस्टर लेवरोस ने एक बयान दिया है। और वो बयान क्या है? हांगकांग अफेयर्स को उन्होंने चाइना का इंटरनल मामला बताया है। हांगकांग में जिस तरीके का विरोध चलता रहता है, वियतनाम में चलता रहता है, और चाइना की विस्तारवादी नीति से जिस तरीके से ये लोग परेशान रहते हैं, उस पर रशिया ने ये कहा कि ये चाइना का अंदरूनी मामला है। लेकिन रशिया की एक भी स्टेटमेंट नहीं आती है भारत और चीन के विवाद को लेकर के। यूं तो गैल्वन वैली तक चाइना पहुंच रहा है, स्टैंड ऑफ कर रहा है। भारत जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बॉर्डर पर कर रहा है, उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से चाइना परेशान होता है और इंडिया को वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करने नहीं देना चाहता है। परंतु इस विषय पर रशिया खामोश है। तो डिप्लोमेटिकली अगर हम अमेरिका के करीब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम रशिया से दूर तो नहीं हो रहे हैं। ये ट्वीट इस पर थोड़ा सा इशारा कर रहा है। आजकल की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स भी ट्वीट और रिट्वीट के माध्यम से चलती है, तो हमारा आकलन भी उसी के आधार पर है। असलियत ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं कि मन में किसी के क्या है, क्योंकि मन की बात तो हमारे मोदी जी करते हैं। अब बात मोदी जी की हो रही है तो मोदी जी का भी एक वीडियो देखते चलिए। हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं, जो छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। खतरा सीमा के भीतर हो या फिरा सीमा पार, ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। गोली का जवाब गोले से देगा। और ये हम बोलते नहीं है, जबान की उंगली बोलती है।
अब मोदी जी के वीडियो को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये वो हिंदुस्तान है जो घुसेगा भी और मारेगा भी। तो ये कहां घुस रहा है और किसे मार रहा है, इसका अंदाजा तो मजदूरों के पलायन से ही लगना शुरू हो गया था। कितने तैयार हैं हम, कितने मुस्तैद हैं हम, और हम क्या कर सकते हैं, इस पे सवालिया निशान खड़े होते हैं और सवाल उठने भी चाहिए। मुझे भारत की बहादुरी में, भारत की सशक्त सेना बल पर कहीं कोई संदेह नहीं है। हम चाइना को जरूर पीछे ढकेल देंगे, हम चाइना को जरूर हरा देंगे। ये आत्मबल हम में भी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री में भी है। और ये आत्मबल जिस तरीके से मोदी जी ने इसका एक प्रवाह किया है, लोगों को एक ऊर्जावान किया है, राष्ट्रवाद का जो नारा वो लेकर के आते रहे हैं, और उनकी जो एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच रहती है किसी भी चीज पर, दो टूक अप्रोच रहती है, कहीं कोई ग्रे मैटर नहीं रहता, उससे जरूर भारत को कहीं ना कहीं बल मिलता है। मगर कुछ चीजों पर सवाल खड़े होने चाहिए, और सवाल पूछना और सवालों के सल्यूशन तक पहुंचना भी सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है, केवल हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। ये तो बात है सरकार की, मगर इसमें एक बात, जब चाइना की बात हो, इंडिया की बात हो, तो जिक्र आता है 1962 का। तो 1962 के जिक्र में एक चीज याद करते चलिएगा, अगर बात नेहरू जी की होगी तो बात महावीर त्यागी की भी होगी। कौन महावीर त्यागी? जी हाँ, वही महावीर त्यागी जो इंडियन पार्लियामेंट्रियन थे। वो लोकसभा में थे, लगातार 3 बार थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लोकसभा में। और उन्होंने 1962 के युद्ध में, जब अक्साई चीन का इलाका जो लद्दाख का रीजन था, उसे जब हमारे हाथ से वो निकल गया, तो नेहरू जी ने एक भाषण दिया पार्लियामेंट के अंदर कि कोई बात नहीं, अगर हम ये जंग हार गए हैं, हमारे हाथ से वो चीज निकल गई, वो इलाका लद्दाख का निकल गया, तो कोई बात नहीं है, वहां पर एक पेड़ भी नहीं उगता, वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता, तो हमने कुछ ऐसा खोया नहीं है। तो उस पर जवाब किसने दिया? महावीर त्यागी ने दिया। महावीर त्यागी कांग्रेस के ही थे और अपने ही सबसे बड़े लीडर के खिलाफ उन्होंने एक बात कही और उनके सामने ही कही कि साहब, आप हमें बताएं कि मेरे सर पे तो बाल नहीं है, इस पर भी एक तिनका बाल का नहीं उगता है, तो क्या इसे भी मैं चीन को दे दूं, या ये भी किसी काम का नहीं है, इसे भी आप चीन को दे दीजिए साहब। कुछ इसी लहजे में, कुछ इसी तर्क में उन्होंने बात रखी। तो मैं फिर से एक सवाल के साथ आपको छोड़ जा रहा हूं, कि आज हमारे और आपके बीच महावीर त्यागी की कमी है, तो तलाशिए किसी महावीर त्यागी को जो आपको मिल जाए एनडीए गवर्नमेंट में या बीजेपी गवर्नमेंट में, जो कम से कम सही सवाल पूछे। और सही सवालों के साथ आज आपको छोड़ के जा रहा हूं। सल्यूशन ढूंढना खुद आपका कार्य है, और मैं इसी तरीके के वीडियो आपको लेकर के आता रहूंगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।